Yes, very warm good morning. In the last lecture, we have just derived the equation of de Broglie. De Broglie ने equation जो दिया है directly book में दिया गया है lambda is equal to h upon mv. But how it comes? It comes from two of the equation, that is Einstein equation as well as Planck's equation. So whatever we have done, we summarize first and then we move that how it comes overcome with the Bohr's model of an atom. So we read first that equation is related with the Planck's as well as Einstein constant. Einstein has said that energy of any of the highly energetic particle, that is photon, that is equal to mc square, or we can write that in v square. And together Planck has said that energy is related with or inverse in the proportion of the wavelength. So he said that E is equal to hc upon lambda. That means whatever he has said that Planck has said that E is there in the proportion of frequency, that is the number of the wave which are there pass from the very first fixed point at a unique time. एक पर्टिकुलर 1 मिनट में कितने वेव नंबर ऑफ वेव्स पास थ्रू हुए उसे हम फ्रीक्वेंसी बोलेंगे. एंड वी हैव लर्न दैट फ्रीक्वेंसी इज देयर इन द इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ द वेवलेंथ. सो व्हाटएवर द पर्टिकुलर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट निकालने के लिए यहाँ पे दिया गया है E is equal to E is there in the proportion of 1 upon lambda, and then after hc upon lambda to remove out the particular. ये कांस्टेंट निकालने के लिए यहाँ पे लिखा गया है hc अपॉन लैम्बडा एंड व्हाट एवर द पर्टिकुलर. तो यहाँ पे एक इक्वेशन मुझे मिला है hc अपॉन लैम्बडा फॉर द प्लैंक्स कांस्टेंट चिल्ड्रन. नाउ व्हेन वी कंपेयर बोथ ऑफ द इक्वेशंस, सो वी कैन राइट दैट E is equal to mc square, that is equal to hc upon lambda. c velocity, that is velocity or speed of light. इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं इसलिए यहाँ पे c की जगह पे लिखेंगे v is the velocity of the electron. So mv is equal to h upon lambda, so lambda is equal to h upon mv. That means de Broglie equation is related to the wavelength of the particular moving particle with the low speed and the momentum of that particular moving particle, that may be micro or macro. We talked about the electrons, which is the microscopic particle. So that what we have learned in the last lecture. Now we compare that how de Broglie equation has overcome the Bohr's equation, children. Now let us see कि बोर ने जो भी बोला फोर्थ पॉइंट और तो थर्ड पॉइंट उसने बोला था कि ऐसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड घूम सकते हैं जिसका एंगुलर मोमेंटम जो है NVR वो हमेशा होना चाहिए NH/2π, जहाँ पे n इंटीजर है जिसकी वैल्यू है 1 2 3. बोर मॉडल में हमने थर्ड पोस्टुलेट उसका देखा था. सबसे पहला पोस्टुलेट देखा था कि इलेक्ट्रॉन्स देखे एंड रिवॉल्व अराउंड इन द पर्टिकुलर सर्कुलर पाथ जिसे हम ऑर्बिट बोलेंगे, एंड दे हैव स्पेसिफिक डिफाइनाइड डिस्टिंक्ट एनर्जी लेवल, एंड विद दैट एनर्जी दे आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस. दैट्स व्हाई दे आर नोन एज एनर्जी लेवल और एनर्जी शेल्स. उसके बाद थर्ड पॉइंट जो हम 11th स्टैंडर्ड में पढ़ेगी, कौन से इलेक्ट्रॉन घूम सकते हैं. तो वैसे इलेक्ट्रॉन जिसका एंगुलर मोमेंटम हमेशा होना चाहिए NH/2. बट उसके लिए उसने कोई मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन दिया नहीं, डायरेक्टली उसने बोल दिया कि जिसका एंगुलर मोमेंटम mvr that is equal to NH/2π है, वैसे इलेक्ट्रॉन ही ऑर्बिट में घूम सकते हैं या तो न्यूक्लियस के अराउंड घूम सकते हैं. जबकि de Broglie ने क्या किया, उसे प्रूव किया कि हाउ दे आर गोइंग टू हाउ दैट पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन्स आर having their angular momentum mvr which is equal to NH/2π. So let us see. उसने क्या बोला कि whatever the particular equation, जो भी उसका equation है, that is lambda is equal to h upon mv, जहाँ पे m है momentum, it's not angular momentum. angular momentum के लिए हम लिखेंगे r radius, it is related with radius. momentum है, that means it related with mass as well as velocity. अब यहाँ पे जो है उसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो मुझे एंगुलर मोमेंटम दैट इज इक्वल टू प्लैंक्स कांस्टेंट अपॉन द वेवलेंथ. अब अगर बात कर रहे हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिट की, तो जो भी सर्कमफ्रेंसेस है ऑर्बिट का, दैट इज इक्वल टू द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द वेवलेंथ. वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म में होना चाहिए, वेवलेंथ के फॉर्म में. दैट मीन्स सर्कमफ्रेंसेस ऑफ द ऑर्बिट हमेशा सर्कुलर वे में होता है. रेडियस लेते हैं तो हाफ सर्कमफ्रेंसेस टू होल, तो सर्कमफ्रेंसेस ऑफ द पर्टिकुलर ऑर्बिट है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द वेवलेंथ.
तो हम क्या लिखेंगे, सर्कमफ्रेंस ऑर्बिट का होगा 2 पाई आर बिकॉज इट इज देयर इन द रेडियस इन द राउंड सर्कुलर दैट इज इक्वल टू n इनटू लैम्डा। इंटीग्रल मल्टीपल, इंटीग्रल इंटीजर है n और मल्टीपल है दैट मीन्स मल्टीप्लाई विद द वेवलेंथ टू लैम्डा। So that means what we have written 2 pi r that is equal to nh. Okay, so here what we are writing is, यहाँ पे अगर नहीं दिख रहा है तो हम लिखेंगे that integral whatever the circumferences of the orbit that is 2 pi r which is always equal to integral n in the multiple of its wavelength lambda. अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, we are cross multiplying that wavelength. So 1 upon lambda that is equal to n upon 2 pi. ठीक है, अब हम फिर से डी ब्रॉगली इक्वेशन में जाएंगे चिल्ड्रन। तो डी ब्रॉगली इक्वेशन मेरे पास क्या था, एम वी that is equal to h upon lambda. Whatever the value over here 1 upon lambda, whatever the value which we are having that is n upon 2 pi r, तो हम क्या करेंगे, एम वी यहाँ पे h इंटू 1 अपॉन लैम्बडा है मेरे पास, तो 1 अपॉन लैम्बडा की वैल्यू आई एम गोइंग टू इंसर्ट। तो मैं क्या करूँगी, दैट इज इक्वल टू h अपॉन 2 पाई r अपॉन n। तो ये n कहाँ चला जाएगा, ऊपर। सो व्हाट आई एम हैविंग इज एन मोमेंटम दैट इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई। अब बोर ने जो बोला था, बोर ने बोला था कि ऐसे इलेक्ट्रॉन ही ऑर्बिट में रिवॉल्व करेंगे जिसका एंगुलर मोमेंटम दैट मींस mvr दैट इज इक्वल टू इन द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इट्स प्लैंक्स कांस्टेंट दैट मींस nh अपॉन 2 पाई। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, ये रेडियस को क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ, तो व्हाटएवर द लास्ट वैल्यू व्हिच आई एम गेटिंग दैट इज इक्वल टू mvr it is equal to nh upon 2। तो ये क्या हो गया, that is about the mathematical proof for the electron that they are having the angular momentum which is equal to nh upon 2 pi. So that was the particular limitations of Bohr. Bohr का ये ड्रॉबैक रहा कि वो कोई मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन दे नहीं पाए। Only he said that electrons, only those electrons can revolve in the orbit which are having the angular momentum mvr that is equal to nh upon 2 pi. उसने कोई मैथमेटिकली प्रूव किया नहीं, बट डी ब्रॉगली हैज प्रूव दैट yes angular momentum mvr which is always equal to nh upon 2 pi. तो उसने क्या किया, what he has said that he has taken the equation and he has taken the inverse of the wavelength. That means whatever the particular momentum mv that is equal to h upon nu that is wavelength. Then when we talked about the electron are there continuously rotating in the orbit. तो उसने क्या किया, circumferences लिया orbit का, उसने बोला कि whatever the circumferences of the orbit that is equal to integral multiple of the wavelength. That means उसने बोला कि whatever the circumferences orbit का है 2 pi r that is equal to integral n and multiple of the wavelength. So cross multiplication of that wavelength 1 upon lambda that is equal to n upon 2 pi. अब उसने क्या किया, whatever the value of 1 he has inserted in the de Broglie's equation. उसने उसके इक्वेशन में ये वैल्यू डाली, तो mv अपॉन h इंटू लैम्डा, तो लैम्डा को यहाँ पे 1 अपॉन लैम्डा, तो whatever the value, ये जो वैल्यू उसने इसको इंसर्ट किया तो मुझे मिला nh अपॉन 2 pi r। उसने रेडियस को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसे हम बोलेंगे एंगुलर मोमेंटम। सो ये है डी ब्रॉगली द होल थियोरी। बुक में खाली दिया है कि डी ब्रॉगली हैज सजेस्टेड दैट व्हाटएवर द वेवलेंथ इज देयर इन द इनवर्स ऑफ इट्स मोमेंटम एंड व्हाटएवर द इनवर्सली प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट निकालने के लिए उसे प्लैंक कांस्टेंट के साथ उसने रिलेट किया है। तो डी ब्रॉगली ने बताया कि मैटर के पास खाली नेचर, पार्टिकल नेचर नहीं है, उसके पास वेव नेचर भी है। बिकॉज व्हेन वी टॉक अबाउट द पार्टिकल्स, लो those particles which are having a very low mass and they having a speed which is lesser than that of light, at a time they behaves as a wave or radiation। ये ब्रॉगली ने बोला
Then after he says that whatever the wavelength is there, wavelength is nothing but the distance between the two adjacent centric points of the wave. वेव के बीच का जो भी सेंट्रिक पॉइंट है उसका जो डिस्टेंस है उसे हम वेवलेंथ बोलेंगे. सो ही हैज़ गिवन द रिलेशन बिटवीन द वेवलेंथ एंड द मोमेंटम. दैट मीन्स ही हैज़ गिवन द रिलेशन ऑफ द मैटर. उसने बोला कि मैटर इज ऑल्सो हैविंग अ वेवलेंथ एंड दैट वेवलेंथ इज रिलेटेड विद द मास एज वेल एज द वेलोसिटी, और directly we can say that the momentum. So that is about the de Broglie equation. Now we learn about the Hinsburg principle, uncertainty principle. Uncertainty, कोई भी चीज़, whenever we talked about any kind of the particular matter or any kind of thing, we are not perfect. We are having such particular इनपरफेक्ट मीन्स हमारे पास कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं है. तो हिंसबर्ग और हिजेनबर्ग आप बोल सकते हैं. हिंसबर्ग हैज़ गिवन द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. आप इलेक्ट्रॉन के लिए कोई पोजीशन फिक्स नहीं कर पाते. यू कैन नॉट से दैट इलेक्ट्रॉन राइट नाउ इज हियर और हियर. So that was given by Hinsburg. So let us learn about the Hinsburg uncertainty principle, children. About the Hinsburg uncertainty principle, आप उसे अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बोल सकते हो, हिंसबर्ग हिजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बोल सकते हैं. और तीसरा इंटरवेनेंसी प्रिंसिपल, दैट इज द न्यू वन व्हिच इज नॉट गिवन इन द टेक्स्ट में. आई हैव रिटन सम ऑफ द जंबल वर्ड्स. पहले लिखा है ऑब्जेक्ट, फिर लिखा है एट द सेम टाइम, फिर लिखा है कैन नॉट मेजर द पोजीशन एंड वेलोसिटी. हमने बहुत पहले छोटे थे तब ऐसे सीखा था कि जो भी जंबल वर्ड है उसका सेंटेंस बना. तो यहाँ पे जो ये प्रिंसिपल है उसको मैंने जंबल फॉर्म में लिखा है. पहले लिखा है ऑब्जेक्ट, फिर लिखा है एट द सेम टाइम, फिर लिखा है कैन नॉट मेजर्ड, और लास्टली लिखा हुआ है द पोजीशन एंड वेलोसिटी. सो चिल्ड्रन, व्हाट इज द प्रिंसिपल? इज द वे टू जस्ट रिमेंबर द प्रिंसिपल इन अ प्रॉपर मैनर. ये एक वे है जिससे आप प्रिंसिपल को अच्छे से याद रख सकते हो कि मैडम ने ऐसे सिखाया. तो अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ऑर्बिट में, सपोज इलेक्ट्रॉन इज कंटिन्यूसली मूविंग कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन के पास दो चीज़ें होती हैं. एक तो उसकी पोजीशन और दूसरा वो वेलोसिटी होगी तभी घूम पाएगा. हमने अभी बोर्ड मॉडल में जो भी थर्ड पॉइंट था कि उसका जो भी एंगुलर मोमेंटम है वो एलिजिबल उपाय होना चाहिए. उसके पास वेलोसिटी होनी चाहिए, मास होना चाहिए, रेडियस वो जहाँ पे घूम रहा है उसका सर्कमफ्रेंस. तो मास और वेलोसिटी के साथ जब भी इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो ऑब्जेक्ट के फॉर्म में यहाँ पे हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉन. तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में हम क्या बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन वी कैन नॉट और इट इज नॉट गोइंग टू बी, इट कैन नॉट बी मेजर्ड द पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन और ऑब्जेक्ट एट द सेम टाइम. आप सेम टाइम पे इलेक्ट्रॉन की पोजीशन या तो उसका जो भी वेलोसिटी है वो यू कैन नॉट मेजर एग्जैक्टली. आप एग्जैक्टली उसे नहीं ढूंढ पाओगे. इज रिमेन अनसर्टेन. आप कहीं ना कहीं चुप जाओगे. दैट मीन्स कि वॉट एवर द ऑब्जेक्ट इज देयर यू कैन नॉट मेजर इट पोजिशन एज वेल एज इट्स वेलोसिटी एट द सेम टाइम in an exact manner. So that is about the uncertainty principle which given by Hinsburg. So what you have to write whenever principle is there written, so you have to write double inverted comma. So you can write that the object cannot measured by its fixed position and velocity at the same time exactly. Or you can write that you cannot measure the velocity or fixed position of the object at the same time. So that is the principle you can write. So that is about the Hinsburg principle. You can just see that इलेक्ट्रॉन जब भी घूमता है तो वो उसका फिक्स पोजीशन और वेलोसिटी आप सेम टाइम पे मेजर कर सकते हो. नहीं, कैन नॉट बी फिक्स्ड एट द सेम टाइम. सो दैट इज अबाउट अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हिंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. और
interdependency principle given by Hinsberg. So that is all about today. In the next particular lecture, we learn about the remaining part, and the remaining part is about the electronic configuration. And before that, we have to learn about the quantum mechanics. क्वांटम मैकेनिक्स एक नया टॉपिक है आपके लिए, सो दैट यू हैव टू लर्न अबाउट दैट. जब भी इलेक्ट्रॉन घूमता है तो उसकी पोजीशन, उसका शेप, उसकी साइज कैसी है, सो दैट व्हाट वी हैव टू लर्न इन द क्वांटम मैकेनिक्स. सो टुडे व्हाट वी हैव लर्न, टुडे वी हैव लर्न अबाउट द डी ब्रॉगली इक्वेशन, डेरिवेशन ऑफ द डी ब्रॉगली इक्वेशन, रिलेशन ऑफ द डी ब्रॉगली इक्वेशन विद द बोर्स मॉडल. बोर ने खाली बोला था एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू व्हेनेवर वी टॉक्ड अबाउट द रिवॉल्विंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट, उसका एंगुलर मोमेंटम NH/2π होना चाहिए. उसने मैथमेटिकली प्रूव नहीं किया, डी ब्रॉगली ने उसको मैथमेटिकली प्रूव करके बताया. सो दैट व्हाट वी लर्न टुडे, एंड वी हैव लर्न अबाउट द हिंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. सो यू कैन राइट दैट मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रिंसिपल इज रिमेनिंग. सो वी जस्ट लर्न दिस इन द नेक्स्ट lecture with starting with the quantum mechanics. Thank you.